آپ تمام اہل وطن کو عید الفطر کی بےحد مبارکباد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پل پل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم۔ آج 31 مارچ ہے اور 31 مارچ کو ایران، غزہ، لبنان اور یمن سے کچھ بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جہاں 10 بڑی خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ تاریخ ہے آج 31 مارچ اور بہت کچھ گھٹت ہوا ہے بیتے 12 گھنٹوں کے اندر، جس کی تصویر لگاتار لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جہاں ہم بات کریں گے یمن کی کہ کیسے اس نے E-2 ہیروک جہاز جو ہے امریکہ کا مار گرایا ہے، جہاں پہلی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ حزب اللہ کا سخت جواب۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے ایک بار پھر فلسطینی مقصد کے ساتھ اپنے تحریری اور جنگجو وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ علاقہ اس وقت تبدیلی کے اہم مرحلے سے گزر رہا ہے، جہاں صرف بیان نہیں بلکہ عملی رد عمل ضروری ہے۔ ہم فلسطینی مسئلے کو انصاف کا معاملہ مانتے ہیں اور اسلامی مقدس کی آزادی پر ہماری یقین مکمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ المائدین نیٹ ورک کے حوالے سے شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل کو توسیعت پسند دشمن قرار دیتے ہوئے یہ کھلا اعلان کیا کہ ہمارے جنگجو بلکہ فطرہ کے لازمی جواب دیں گے اس منصوبہ بندی کے خلاف جو اسرائیل اور امریکہ مل کر اس علاقے پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیل اور امریکہ کی ملی بھگت اب جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پہلا یہ کہ توسیعت، دوسرا یہ کہ ریزسٹنس کا پوری طریقے سے صفایا کرنا، اور تیسرا یہ کہ لبنان کے مستقبل پر قبضہ کرنا، جو امریکہ اسرائیل یہ کبھی نہیں کر پائے گا۔ شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل کی لبنان کے خلاف جاری حملے پر سخت انداز میں کہا، اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ دہالیہ جنوب اور بقا علاقوں پر حملہ کر کے کوئی نئی توازن قوت قائم کر لے گا تو ہم اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ لبنانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ محض ڈپلومیٹک گفتگو اور بیانوں سے آگے بڑھے اور اپنی خود مختاری اور سرزمین کی حفاظت کے لیے سخت اور فوری قدم اٹھائے۔ ہم صرف جنگ نہیں لڑتے، ہم اس ملک کی تعمیر اور اس کے مستقبل کے لیے بھی حصے دار ہیں۔ لبنان تبھی اٹھے گا جب اس کی پوری عوام ریزسٹنس کی یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہوگی، شیخ نعیم قاسم نے آخر میں یہ صاف طور پر کہا۔ وہیں آپ دوسری خبر دیکھ سکتے ہیں کہ یمن کا بڑا حملہ، امریکی جہاز E-2 ہیروک کو مار گرایا ہے۔ سنا حکومت نے اعلیٰ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یمن کی افواج نے امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر USS ہیری ایس ٹرومین کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مرکزی جہاز E-2 ہیروک کو سیدھا نشانہ بنایا ہے۔ E-2 ایک ٹوین انجن 5 کرو ممبر والا ہے ہائی ونگ ایئر کرافٹ ہے، جس کے اوپر 24 کروز کا ایک وشال ریڈار ڈوم ہوتا ہے موجود، اور جو اسے دشمن کے لیے ایک ہوائی آنکھ اور پرنٹنگ برین مانا جاتا ہے۔ E-2 ہیروک کا کام آل ویدر، آل وارننگ، ایروبین بیٹل مینجمنٹ، کمانڈ اینڈ کنٹرول فنکشنز کو انجام دینا ہوتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ جوائنٹ فورس کمانڈر کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس اور ٹارگیٹنگ ڈاٹا مہیا کراتا ہے۔ یمنی سینا کا یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب جنگ محض زمین پر نہیں بلکہ تکنیکی اور مرکزی کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے۔ اگر یہ حملہ کامیاب رہا تو USS ہیری ایس ٹرومین کی ہوائی نگرانی اور بیٹل کمیونیکیشن سسٹم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ وہی USS ٹرومین ہے جو ریڈ سی میں غزہ جنگ کے دوران امریکہ دبدبے اور اسرائیلی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ اب اگر اس کا کمانڈ ایئر کرافٹ ہی ٹارگٹ بن گیا تو یہ امریکہ کے لیے ایک فوجی اور سیاسی جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے۔ یمن نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اگر غزہ جلتا رہے گا تو ہم لال ساگر کو بھی سکون گاہ نہیں بننے دیں گے۔ وہیں آپ تیسری خبر دیکھ سکتے ہیں، یمن اور ایران کے خلاف جاسوسی کیندر بنایا گیا ہے۔ دوستو، لال ساگر کے اہم جیوگرافیکل مقام بابر مندب اسٹریٹ کے قریب پیرم آئی لینڈ پر ایک نیا فوجی اڈا تعمیر کیا جا چکا ہے۔
इसकी तामीर अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह अड्डा किसका है। अभी तक इसकी मालिकी को लेकर कोई रहस्यमयी ऐलान या तस्दीक नहीं हुई है, मगर हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि इस बेस का इस्तेमाल यमनी सेना और ईरान के खिलाफ जासूसी के लिए किया जा रहा है। पेरिम आइलैंड को लोकेशन निहायत अहम किया गया है। ये वही इलाका है जहां से होकर दुनिया की बड़ी तेल और ट्रेड शिपिंग कंपनी गुजरती है, यानी जो इस मुकाम पर कब्जा करता है वो न सिर्फ लाल सागर जियोग्राफी पर बल्कि समुद्री तिजारत और सिक्योरिटी बैलेंस पर भी काबिज हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि इस फौजी बेस में एयरक्राफ्ट, रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन टावर्स लगाए गए हैं, जिनका मकसद सीधा सीधा यमन की जंग में तकनीकी बढ़त हासिल करना हो सकता है। अब दोस्तों सवाल यह आ रहा है कि क्या यह बेस किसी खलीजी मुल्क का है या अमेरिका और इजराइल के किसी नए जासूसी मंसूबे का हिस्सा है, या फिर यह एक बहुराष्ट्रीय गठजोड़ के जरिए खड़ा किया गया गैर रहस्यमयी अड्डा है। जब तक इस पर पर्दा पड़ा है तब तक यमन, ईरान और इस पूरे इलाके की जियोग्राफी और सियासत नई शक्ल ले सकती है। और अगर यमन की हुदूद के इतने करीब कोई जासूसी अड्डा वजूद में आता है तो यमनी सेना का रद्द अमल जल्द सामने आना तय है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, ईरान की फौज का ऐलान। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अफवाज के जनरल स्टाफ ने एक बेबाक और दो टुक प्लान करते हुए साफ तौर पर कहा, अगर किसी ने भी ईरान की सरहदी इख्तियार, उसकी आजादी या सलामती को ललकारा तो जवाब सिर्फ दिफा में नहीं बल्कि हमलावर अंदाज में दिया जाएगा। जनरल स्टाफ का बयान साफ है कि दुश्मन किसी भी किस्म की धमकी, हमले, उकसावे और सरहदी दखल अंदाजी का हम पूरी ताकत से सख्त रद्द अमल और जंग स्टाइल में जवाब देंगे। इस बयान के साथ ही ईरानी सेना ने यह भी पैगाम दे दिया है कि अब वो महज रक्षात्मक नहीं बल्कि मुस्तकिल तयशुदा हमलावर पोजीशन में है। इस पूरे इलाके में बढ़ती साजिशों के दरमियान ईरान का यह बयान न सिर्फ उसकी अंदरूनी ताकत का इजहार कर रहा है बल्कि दुश्मनों को दी गई चेतावनी भी है कि अगर इरादा गलत हुआ तो जवाब सिर्फ लफ्जों में नहीं, अमल और जंग के मैदान में मिलेगा। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, जो बड़ी खबर सामने आई है, IRGC ने यूएई में बेचैनी बढ़ा दी है। इस IRGC ईरान ने साफ तौर पर ये जासूसी ड्रोन जो है इस वक्त बू मूसा आइलैंड और यूएई के साहिली इलाकों के दरमियान गश्ती मिशन पर तैनात है। ये यूएवी तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है और इसका मकसद इलाकाई तहरीकात और समुद्री सुराख की कड़ी निगरानी करना है। यह ड्रोन न सिर्फ एक तकनीकी गैरत का नमूना है बल्कि ईरान की इलाकाई ताकत और सुरदारी इरादों का भी ऐलान है। उसके साहिली ताउन को यह पैगाम देता है कि हर हरकत देखी जा रही है और हर सरहद महफूज है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, ट्रंप की धमकी। दुनिया एक बार फिर जंग के साए में खड़ी हुई है दोस्तों। इस बार मैदान है ईरान और अमेरिका और अल्फाज के गोले दागे जा रहे हैं। सीधे व्हाइट हाउस के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुबान से एनबीसी को दिए गए एक टेलीफोन इंटरव्यू में ट्रंप ने खुली धमकी दी है, अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो हम ऐसी बमबारी करेंगे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक सियासी स्टंट नहीं है बल्कि ईरान अमेरिका के दरमियान बढ़ते तनाज़े और जंगी फिजा का ऐलान है। ईरान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, मगर दुनिया जानती है कि तेहरान न तो दबाव में आता है और ना ही धमकियों से पीछे हटता है। जंग का ऐलान जुबान से हो सकता है मगर उसका अंजाम सरहदों और शहरों पर लिखा जाता है। अब देखना यह है क्या वाकई दुनिया एक और तबाही की तरफ बढ़ रही है या फिर यह सिर्फ ट्रंप की इलेक्शन डिप्लोमेसी का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, नेतन्याहू ने दी एथनिक क्लींजिंग की खुली धमकी।
इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बार फिर अपनी असल नीयत दुनिया के सामने ला दी है। अब वो गजा से फलस्तीनी अवाम का मुकम्मल हटाना नहीं चाहता है, जबरदस्ती उन्हें निकालना नहीं चाहता है, बल्कि खुले तौर पर ऐलान कर रहा है। अपनी ताजा बयान में नेतन्याहू ने कहा कि हम अब आखिरी मरहले की बात करने को तैयार हैं। हमास हथियार डाल दे, उसके रहनुमा गजा से बाहर चले जाएं, हम गजा पट्टी पर इजरायली सिक्योरिटी कंट्रोल कायम करेंगे और ट्रंप इमिग्रेशन प्लान को लागू किया जाएगा। यही प्लान है और हम इसे छुपा नहीं रहे। यह बयान सिर्फ फलस्तीनियों के लिए नहीं है, बल्कि इंसानियत और इंसाफ के हर उसूल के लिए सीधी ललकार है। क्या यह वही लोकतंत्र है जिसकी दुहाई दी जाती है, या फिर यह एक कब्जा शुदा सोच है जो पूरी कौम को मिटाने के एजेंडे पर काम कर रही है? ट्रंप इमिग्रेशन प्लान, जो दरअसल फलस्तीनी अवाम को गजा से निकालकर दूसरे अरब मुल्कों को बिखेरने की साजिश है, अब इजराइल की सरकारी पॉलिसी का हिस्सा बना दी गई है। नेतन्याहू का यह ऐलान इस बात का खुलासा करता है कि अब नकबा 2.0 शुरू किया जा रहा है, जहां बस्तियां नहीं पूरा वजूद मिटाया जा रहा है। फलस्तीनी अवाम को अब दो ही चीजें बचानी है, अपनी सरजमी और अपनी इज्जत, और दुनिया को तय करना है कि वो इस जुल्म में शरीक हैं या खामोशी से गवाह बने रहेंगे। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं। वन पीस के फैंस ने शहीद याहिया सिनवार को दी श्रद्धांजलि। दुनिया भर में मशहूर एनिमी सीरीज वन पीस के चाहने वालों ने शहीद याहिया सिनवार की बहादुरी और कुर्बानी को एडवर्ड न्यूट उर्फ विदरबोर्ड से तशबीह दी है। वो किरदार जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुआ मगर झुका नहीं। वन पीस के फैंस का साफ तौर पर कहना है कि याहिया सिनवार की शहादत भी उसी जज्बे की अलामत है जहां एक मर्द मुजाहिद पूरी ताकत से जालिम निजाम के सामने सीना ताने खड़ा था। व्हाइट बियर्ड ने आखिरी सांस तक अपने उसूलों और कौम के लिए लड़ाई लड़ी, और ठीक उसी तरह याहिया अल सिनवार ने भी गजा, इस्लाम, मजलूम फलस्तीनी अवाम के लिए अपने वजूद को कुर्बान कर दिया। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं। इजरायली चैनल का इकरार, यमनी मिसाइल ने लाखों इजरायलियों को बंकर में घुसने के लिए मजबूर कर दिया। इजराइल की मशहूर मीडिया नेटवर्क चैनल 12 ने आज एक अहम रिपोर्ट में तस्लीम किया कि यमनी सेना की जानिब से छोड़ा गया ताजा बैलिस्टिक मिसाइल लाखों इजरायली नागरिकों को शेल्टर्स में घुसने पर मजबूर कर गया। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि हालांकि यमन पर अमेरिकी हमले रोजाना बढ़ रहे हैं, मगर इन हमलों का कोई असर यमन की मिसाइल ताकत पर नहीं पड़ा है। उल्टा इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों की तादाद में इजाफा हो रहा है। यह बयान इस बात का साफ इजहार करती है कि अमेरिका हमले जो यमन को कमजोर करने के लिए चलाई जा रही थी, वो नाकाम और बेअसर साबित हो रही है। जब मिसाइलें इजरायली सरजमीन पर गिरने लगे और बंकरों में छुपना मजबूरी बन जाए, तो ये इत्तेहादी ताकतों की नाकामी का इशारा होता है, ना कि फतह का। यमन ने पहले ही ये ऐलान किया था, जब तक गजा का जुल्म जारी रहेगा, लाल सागर से लेकर इजराइल की सरहदों तक हमारे जवाब भी जारी रहेंगे। और अब इजरायली मीडिया खुद ये अपनी हार को स्वीकार कर रहा है कि यमन की सेना न दबाई जा सकी है और ना ही थमने को तैयार है। वहीं आप 10वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं। ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान ने एक इंसानी, इनकलाबी और इल्मी पहल करते हुए उन तमाम अमेरिकी तलबा के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जिन्होंने ज़ियोनिस्ट रियासत के खिलाफ एहतजाज करने की सजा में अमेरिकी यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ कल्चर रेवोल्यूशंस के सेक्रेटरी ने ऐलान किया है कि हम उन अमेरिकी स्टूडेंट्स को अपने इल्मी और तिब्बी इदारों में तालीम का मौका देंगे जो इजराइल के मजलूम कुछ कदमों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सिर्फ दाखिला नहीं है, बल्कि एक रुख है जहां इल्म, ज़मीर और इंसाफ एक साथ खड़े होते हैं।
ये पेशकश साइंस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज के ताउन से की जा रही है ताकि उन स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल सियासी और इंतकाम की भेंट न चढ़े जब दुनिया भर में अकादमिक आजादी पर सवाल उठ रहे हैं और इजराइल की हिमायत में अमेरिका अपने ही स्टूडेंट्स को सजा दे रहा है। ऐसे में ईरान का यह कदम इल्म और इंसाफ की तरफ बढ़ा हुआ होता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। नाजरीन, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।